Okay, so let us discuss question number 2 from assignment 4. So in this question it is given that a truck is traveling due north. So let us take this direction. A truck is traveling in this way, due north. Due north means it is traveling towards north direction. Alright, so a truck is traveling like this. Okay, this one towards north. So this is north direction, it is traveling towards north. And the velocity given to us is, so let us call it v1. Velocity given to us is 20 meter per second, right? So we can say that this is v1 vector is 20 j cap. Okay, why j cap? Because we have taken this as y axis and this is x axis, so this direction is j, the unit vector along this direction is j cap, and the unit vector along this direction is I cap. All right, so this is v1 vector. Now the question says that it turns towards west. So it was going towards north and then it turns towards west. So it turns like this. It is in this direction now. All right. So it says that I travel at the same speed. The speed remains the same. So the speed remains same means what? V2 is equal to 20 meter per second. Still the speed remains the same. So in vector form, I can say that this is V2 vector is equal to 20 into minus I cap, right? So this is I cap. So this is minus I cap. Alright, so now what we have to find out? We have to find out the change in its velocity. Now the change in velocity will be what? Will be the final velocity minus the initial velocity. Alright, ठीक है, final velocity minus initial velocity. So I taught you, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि subtraction is basically addition of two vectors, that is v2 plus of minus v1. v2 plus of minus v1. So that means v2 will remain as it is. There is no need to change it, and v1 we'll have to reverse it. So we will reverse it, okay, and then we'll add these two vectors. That is the meaning of subtraction, right? That is what we have discussed in subtraction. So subtraction can be basically converted into addition. So this is v2 plus minus v1. v2 will remain as it is, and v1 we'll have to reverse it, and after reversing we'll add these two vectors. v2 will be added to minus v1. So let us reverse v1. So v2 will remain as it is. So I am again redrawing. So this is v2 vector, and v1 vector is towards, you can see it is towards north. So I'll draw it towards south. I'll reverse it like this. This is reversed now, right? All of you can see this. This is reversed. This is v1. Now I have to add it. So this is not v1, this is minus v1, right? Okay, so this is the v2 vector which we have kept it as it is. We have not changed it, right? But v1 vector we have reversed its direction. We have changed its direction. So it was facing towards north. Now we have reversed its direction. Now it's facing towards south. It's minus v1, and we got to add these two vectors, v2 and minus v1. All right, so how do we add it? So we see that these two tails are joined, right? So in parallelogram law, what it is? Tail से tail मेला. yes, याद है आपको, ने पढ़ाया था आपको, right? तो ये देखिए दोनों टेल जोड़ा तो हम क्या लगा देंगे? पैरेललोग्राम लगा देंगे. तो ये हमने इनको पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, और इसका जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल, ये वाला इसका रिजल्टेंट है, राइट? दैट्स ऑल. यानी ये रिजल्टेंट है. तो दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा वी. तो ये दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, v2 और माइनस v1 को ऐड करने के बाद एक नया वेक्टर मिलेगा. वो नया वेक्टर है डेल्टा वी. दैट न्यू वेक्टर इज डेल्टा वी. समझ में आ रहा है आप लोग को? आई एम श्योर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, राइट? तो ये है डेल्टा वी वेक्टर, राइट? तो दैट्स ऑल डेल्टा वी. तो आप देख सकते हो ये क्या है, ये है साउथ, ये है वेस्ट. तो जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट. ओके, तो साउथ वेस्ट आएगा. एंड हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड विल बी डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab कॉस थीटा. पर सब्ट्रैक्शन है तो आपको याद है सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. तो यहाँ पे जो थीटा है वो 90 है. जो थीटा है वो कितना है? वो 90 है, कॉस 90, राइट? दिस विल बी कॉस 90. तो ये टर्म 0 हो जाएगा. तो कुल मिला के ये आ जाएगा अंडर रूट v2 स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर यानी 400, प्लस v1 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी फिर से 400. तो कुल मिला के ये आएगा अंडर रूट 800. मतलब कुल मिला के ये आएगा 20√2. सो 20√2 साउथ वेस्ट, मतलब ऑप्शन आएगा डी. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड every aspect of it. So we'll discuss the next question, that is question number 3.
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 राइट, इसमें दिया है कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर. सो लेट अस कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स. एक हमने ले लिया n1 कैप, एक हमने ले लिया n2 कैप. तो यहाँ दिया गया है कि इनका जो सम है दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर. मीन्स n1 कैप प्लस n2 कैप, ये दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है. तो इसको मैं बोल सकता हूँ ns कैप. ऑलराइट, ठीक है. तो फिर इसका मॉड कितना होगा? ns कैप का मॉड, ns कैप का मॉड होगा इसका मॉड, यानी n1 वेक्टर प्लस n2 वेक्टर, यानी दो यूनिट वेक्टर का मॉड. तो मॉड मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. ए स्क्वायर यानी इसका मॉड 1 है, प्लस बी स्क्वायर इसका मॉड 1 है, राइट. कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मॉड 1 होता है. तो प्लस 2ab मतलब फिर 2 इंटू इसका मॉड यानी 1, फिर ए बी मतलब इसका मॉड, और इनके बीच का एंगल यानी कॉस थीटा, और यहाँ पे इसका मॉड. तो ये भी यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉड कितना होगा? 1 होगा. अब आप इसको स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, राइट. 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 1 इंटू 1 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा. तो यहाँ से आप ये 2 को इस साइड ले लीजिए, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा. तो यहाँ से जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा मिल जाएगा -1/2. तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 जो कि 120 डिग्री होता है. तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, राइट, इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल मिल गया. मतलब एक यूनिट वेक्टर ऐसा है और एक यूनिट वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल है 120, ठीक है, 120 डिग्री. तो ये हो गया n1 कैप, ये हो गया n2 कैप. अब सवाल ये पूछा गया है कि अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? इनका डिफरेंस. तो उसको हमने मान दिया nd. कह रहे कि जो डिफरेंस है वो भी यूनिट वेक्टर है. ओके, जो सम है, सम इज़ अ यूनिट वेक्टर. और क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस. अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस पूछा है. ओके, ये नहीं कहा है कि इट्स अ यूनिट वेक्टर, जस्ट पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस मतलब क्या होगा? n1 कैप माइनस n2 कैप, राइट. दिस इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. सो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? राइट, ये सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट. थीटा हमें पता है ऑलरेडी 120 डिग्री है, राइट. तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, राइट. वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला इन आवर वीडियो लेक्चर्स. तो अब आप बस ये फॉर्मूला यूज़ कर लो. अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब इसके मॉड का स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, बी का स्क्वायर इसके मॉड का स्क्वायर, फिर -2 इंटू 1 इंटू 1, और कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ 120 डिग्री. तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 इंटू 1 इज 2, कॉस 120 इज -1/2. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया. समझ. So let us discuss question number 4. In question number 4, it is given that a ball it strikes the floor like this. Okay, it strikes with some velocity v, and then it rebounds back with the same velocity v. Basically, this velocity can be said as v1, right, and this can be said as v2. So the mod of this velocity is v. These two velocities are different because their directions are different, but their magnitude is same. Okay, the question says that it rebounds with the same magnitude, right? It rebounds back with the same magnitude at the same speed and same angle. So it struck the wall, it struck the floor with an angle theta, and rebounds from the floor. It rebounded from the floor with the same angle theta. It struck the floor with a speed v, and it rebounded from the floor with the same speed v. All right. So I hope you are understanding this. All right. समझ में आ रहा आप लोगों को? Yes. Okay. तो पूछा गया हम लोगों से कि what is the change, the magnitude of change in momentum. ठीक है. Magnitude of change in momentum. Please try to understand this. ठीक है. क्या पूछा गया हम लोगों से? पूछा गया है magnitude of मतलब ब्रैकेट of what? Of change in मोमेंटम, ये पूछा गया है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ को मैंने कर दिया मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? ऑफ चेंज इन मोमेंटम.
I hope you're able to understand, guys, right? This is magnitude of. So magnitude मतलब mod, of मतलब अब वहाँ पे mod से start हो गया, right? Bracket of what? Of change in momentum. Alright, this is what we have to find out. So first we'll try to find out, this change in momentum. So change in momentum will be what? It will be the final momentum minus the initial momentum. Alright. So we'll find out one by one what is the final momentum, what is the initial momentum. Alright. So I hope all of you are enjoying this. So the final momentum, so we'll have to take component of this, right? We'll have to take component of this. So let us take component of this. ये ऐसा वेक्टर है, ओके, इस तरह का है, इसका ये वेलोसिटी v है, इसके कंपोनेंट्स, तो ये एंगल आप देख लो कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा, ओके, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट है वो बहुत बार समझाया मैंने आपको, वो v cos थीटा होगा, और जो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट यानी ये वाला कंपोनेंट यानी ऊपर वाला वो होगा v sin थीटा। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा, राइट, जो ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल मोमेंटम है, जैसे इनिशियल वन ये स्ट्राइक कर रहा है अभी, ये फ्लोर को स्ट्राइक करने से पहले का, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वो होगा m इंटू वी इनिशियल। अब v इनिशियल मतलब ये v1, राइट, v1, तो इस तरह से हम कह सकते हैं v1, तो v1, और v1 क्या होगा, v1 होगा v sin थीटा आई कैप, राइट, v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा माइनस जे कैप। तो ऊपर जो डायरेक्शन है वो जे कैप है, तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जे कैप। ऑलराइट, तो ये होगा v sin थीटा, राइट, प्लस हम इसके कंपोनेंट लिख रहे हैं v1 के, वी आर राइटिंग कंपोनेंट्स ऑफ v1 वेक्टर, दैट इज v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा माइनस जे कैप। तो v cos थीटा माइनस जे कैप। फ्रेंड्स, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, ये जो है दिस इज इनिशियल मोमेंटम। ऑलराइट, नाउ सिमिलरली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है ये वाला इसके कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, जैसे ये आप देख रहे हो ये है वेलोसिटी v, तो इसका एक कंपोनेंट, अभी ये एंगल थीटा है, राइट, तो जो थीटा के पास वाला है यानी ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा v cos थीटा, और जो थीटा से दूर वाला यानी ये वाला कंपोनेंट ये होगा v sin थीटा। ओके, सो लेट अस राइट डाउन द फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा m v2 वेक्टर, मतलब m इंटू v2, तो दिस विल बिकम v sin थीटा आई कैप। ऑलराइट, सो v sin थीटा आई कैप प्लस ये होगा v cos थीटा, ये ऊपर की तरफ है तो j कैप। ऑलराइट, तो इस तरह से मिल गया हम लोगों को इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ध्यान से देखिए, राइट, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो वी हैव टेकन द कंपोनेंट्स हियर एंड यू कैन सी दिस, राइट, आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट लिए, जैसे पहले ये वाला था, तो ये इनिशियली स्ट्राइक करने से पहले इस तरह नीचे आ रहा था, ये v वेक्टर, तो इसके हमने कंपोनेंट लिए, थीटा के पास वाला कंपोनेंट v cos थीटा, थीटा से दूर वाला जो v sin थीटा। वैसे यहाँ पे ऊपर ये है अपना फाइनल स्ट्राइक करने के बाद इस तरह ऊपर जा रहा है, तो ये बना रहा है एक एंगल थीटा इसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट यानी v cos थीटा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट यानी v sin थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम लिखा है, यहाँ मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इसके दो कंपोनेंट्स है, एक है v sin थीटा जो आई कैप के अलॉन्ग है, एक है v cos थीटा जो माइनस जे कैप के अलॉन्ग है। मैंने दोनों को यहाँ लिख दिया, v sin थीटा और ये प्लस v cos थीटा माइनस जे कैप। ऑलराइट, और फाइनल मोमेंटम होगा m v2, मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, एक है v sin थीटा आई कैप, एक है v cos थीटा प्लस जे कैप, तो वो भी हमने लिख दिया है। अब हमें दोनों को बस सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल करेंगे तो ये v sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो कंपोनेंट ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा mv cos थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा फाइनल का, mv cos थीटा जे कैप माइनस ऑफ माइनस v cos थीटा जे कैप, मतलब कुल मिला के ये आ जाएगा 2mv cos थीटा जे कैप। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑलराइट, कैसे होगा, आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, वो तो आप खुद भी करके देख सकते हैं, राइट। तो ये mv sin थीटा माइनस mv sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, आई कैप है दोनों, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये है mv cos थीटा प्लस जे कैप, और माइनस करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है,
तो माइनस ऑफ, यहाँ एक और माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम वी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस थीटा, 2 एम वी कॉस थीटा, और दोनों का डायरेक्शन जे कैप है, तो 2 एम वी कॉस थीटा जे कैप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। आगे के चैप्टर्स में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, तो इसलिए आप इसको एक बार 2 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें दिया है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, राइट। और पूछा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो फाइंड द एंगल बिटवीन ए आणि बी, ऑलराइट। तर आपल्याला दिला आहे मॉड ऑफ ए मायनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड बी, आणि आपल्याला असं विचारलं आहे की फाइंड द एंगल बिटवीन ए आणि बी. Alright, so I hope all of you able to understand the question. So let us begin with the question. So mod of a minus b, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि mod of a minus b का मतलब क्या है, राइट। आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, राइट, mod of a minus b. तो mod of a क्या होता है? mod of a होता है अंडर रूट a डॉट a, ये समझाया था मैंने आपको, राइट। तो वैसे ही mod of a minus b क्या होगा? mod of a minus b होगा अंडर रूट a माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी, ऑलराइट, इस तरह से होगा। तो फिर मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए डॉट ए स्क्वायर, राइट। फिर ये ए डॉट बी आएगा माइनस ए डॉट बी, ओके। फिर बी डॉट ए आएगा, तो माइनस, ये सब हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, माइनस माइनस प्लस, फिर ये बी स्क्वायर आएगा, राइट, ओके। तो जो मैंने बताया है, पढ़ाया है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, है ना, मेहनत करिए। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस 2 ए डॉट बी डॉट ए, दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स बी डॉट ए मतलब ए बी कॉस थीटा, तो 2 ए बी कॉस थीटा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस, ओके। और इसका स्क्वायर क्या होगा? और मॉड ए ये है, तो मॉड ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। इसका मतलब ये तीनों बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इस इक्वेशन में, राइट, बी की जगह पे ए स्क्वायर डाल देंगे, बिकॉज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 2a, बी की जगह a, बिकॉज अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है मतलब a इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी, तो ये सब हमने b को हटा के a डाल दिया, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू a स्क्वायर, ऑलराइट। तो ये एक a स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 क्यों आया? क्योंकि ये ए स्क्वायर कैंसिल, मतलब ये यहाँ से आपने उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 हो गया। बट यहाँ पे 1 क्यों है? क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है ना, यहाँ पे दिस इज़ 1 इंटू समथिंग, तो ए स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। खैर ये सब तो आपको आता ही है, हम लोगों ने आपको कुछ ज़्यादा ही बच्चा समझ रखा है, राइट, बट ये सब तो आपको पहले से ही आता है। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया? कॉस थीटा हाफ आ गया। कॉस थीटा हाफ कब होता है? जब थीटा होगा कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, यानी 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हमको मिल गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो 60 डिग्री मतलब कौन सा ऑप्शन है वो आप चेक कर लीजिए। आई होप कि वो, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 में वो है ऑप्शन आपका, राइट। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, वो 60 डिग्री है। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12. In question number 12 it is given that you know there are two vectors like this. So this is a vector and this is b vector, and the angle between these two vectors is 120 degree, and c is the resultant, all right. So c is the resultant, so this is the resultant, c vector. Okay, so c vector is basically a plus b, it is basically a plus b. Now the question is you know, if you subtract a and b, so this is a plus b, all right, but question doesn't talk about, it does not talk about a plus b, it talks about a minus b. It says that whether this c
will be greater than a plus b, or it'll be less than, sorry, it'll be greater than a minus b, less than a minus b, greater than, equal to, or what it may be. So this is what we have to discuss. All right, now, so in this question, this is a vector, this is b vector, this is the angle between two vectors, that is 120 degree, and the resultant is the c vector. How did we get it? We got it by parallelogram law of vector addition. We completed this parallelogram, and this diagonal, my friends, this diagonal is the resultant, that is c vector. And then it talks about what is the relation between c vector and mod of a minus b vector. So my friends, what is a minus b? So a minus b is a new vector, that is d vector, right, which actually means a plus minus b, that is keep a as it is, don't change it, keep a as it is, and reverse this vector, reverse b vector, and then my friends add these two vectors. All right, so let us reverse the b vector. B vector when reverse will be like this, this will be minus b, right, and then you'll have to find the resultant. So the resultant will be this one, this will be the resultant. So this will be the resultant, that is d vector, which I was talking about, my friends, which I was talking about. So this is d vector, and d vector is a minus b. So a vector means this one, this is a vector, this is minus b vector. Sum of a and minus b, sum of a and minus b also can be found out using this parallelogram law of vector addition. This is a vector, this is another vector, minus b vector. We have to add these two vectors. How do we add them? We complete the parallelogram, and then we take the diagonal here. So this is d vector. So this d vector is, my friends, it's equal to a minus b. So we can see that that c vector is smaller, c is smaller than d, right? So we can say that, you know, the resultant we can see that c vector का जो mod है is less than, right, it is less than mod of a minus b. Correct? Is that okay? So the correct option will be B, whereas the option given in the, you know, the assignment is C. So that is a wrong option. Please correct that option. All right, so the correct option for this is B. Okay, that the magnitude of C vector is less than magnitude of A minus B. So just once again in short, this is A vector, this is B vector, 120 degrees, this is the resultant. All right, C vector. Now A is this and minus B will be reversed, so it will be downwards minus B. Again we'll complete the parallelogram, and this vector will be the sum of A vector and minus B vector, that is A plus minus B, that is A minus B. All right, so this is going to be the D vector. Now the question is whether C vector and D vector, which one is the, you know, longer one, or which one is the greater one? So obviously D vector is greater one, right? D vector, the magnitude of D is far greater than C, so we can say that C vector is less than, mod of C vector is less than mod of A minus B. So the correct option is going to be the option B, that is second option. All right, so let us go to the next question. So friends, let us discuss question number 13. In this question it is given that mod A is 12, mod B is 5, and mod C is 13. And also it's given that A plus B vector is equal to C vector. All right, so we can see A plus B is equal to C, right? So we can just write it down like this, mod of A plus B, because these are equal, right? LHS is equal to RHS. That's only possible when the resultant direction is same and when the magnitude is same. So mod of A plus B is equal to mod of C. Alright, so mod of A plus B will be, अभी discuss किया था हमने, A square plus B square plus 2AB cos theta, and this is C square mod of C square, right? Mod of C is under root C dot C, and C dot C is C square. Mod of A plus B is under root A plus B dot A plus B. So this is what we get. This we have discussed so many times in our video lectures. I hope all will be getting it right. The square both the sides, so this is A square plus B square plus 2AB cos theta is equal to C square. Alright, so A square means 12 ka square, so that will become 144, and B ka square, that will become 25. Alright, so this is 2 into A is 12, B is
again 5, and this is cos theta equal to c square, that is 13 square. So this is again going to be 169, right? 144 plus 25, and this is going to be 12, 5 is 60 into 2, 120 cos theta, and this is again 169, 169, this is 0. So cos theta is equal to 0 by 120, and that comes out to be 0. So theta is equal to cos inverse of 0, and that is 90 degrees. So 90 degrees is the answer. So this is how you can do it, and there is one more way to do it, my friends, that is, see, a plus b gives c, right? So I can say this is a vector when added to b vector gives c vector. Alright, so this is mod a, that is 12, and this is mod b, that is 5, and this is mod c, that is 13. This is also a Pythagoras, right? It's a triplet, right? So this is going to be the structure, right? It's going to form a right angle triangle. So what is the angle between two vectors? So if you extend it like this, so when the two vectors are diverged from a point, then this angle is the angle between two vectors, and that comes out to be 90 degree. Alright, so this is how we can solve. So I have taken all the doubts of DPP number 4, and tomorrow I'll take all the doubts of DPP number 5. So if you have any doubts of DPP number 5, please send me on WhatsApp. Alright, so I'm going to upload this video, guys. Enjoy. Alright, bye bye.